Yes, sir. Good morning, sir. Morning. लास्ट क्लास हम लोग स्टडी किए थे अबाउट So relation between Class. drift velocity and electric current. Good. What is the electric current? How you define the electric current? Just define the electric current. The amount of electric charge flowing through any cross-section area of conductor per unit time. बिल्कुल सही है. Good. Drift velocity. Sir, the Define average drift. velocity through which the free electron shifted towards positive terminal of cell. Good. Very nice. What is the relaxation time? Time interval between collision of two successive free electrons. बिल्कुल सही है. Good. Now, what is the relation between the electric current and drift velocity? Q Yeah, is how the equal to yes. the Q is yes. sir. The Q is equal to N minus A L E. No. No, This sir. is not. I is The equal to electric current is directly NA. proportional to drift velocity. Yes, सही है. And what are the main relation, main formula, main expression for the I is electric current? equals to NEABD. And I equal to NEABD. चलिए. Yes. Good. Next topic, current density. Excuse me, sir. Yes, बोलिए. सर आपने उसके बाद एक रिलेशन बताया था ना, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना प्लीज. कौन सा रिलेशन बताया था? जैसा हिंट करो मुझको आप. करंट डेंसिटी का बता रहे थे. I by A अच्छा, is equals to NE. I by Okay. S. हाँ हाँ. देखो, I equal to NEABD. ये रिलेशन हम लोग ने स्टैब्लिश किया था. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहाँ से एक को हम I by A कर दें इक्वल टू NEVD लिखेंगे ना. Yes, sir. I by A को क्या बोलते हैं हम लोग? I by Q. A is yes the ratio of electric current to the area. उसको क्या बोलते हैं? कौन सा टर्म है ये फिजिकल क्वांटिटी? चार्ज डेंसिटी. Q. करंट डेंसिटी. Current density. Density, sir. करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं सर. सर J से डिनोट J से करेंगे. denote करते हैं. I by A equal to current डेंसिटी, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं J से. तो ये रिलेशन हो गया J इक्वल टू NEVD. Again from this relation हम लोग बोलते हैं, we can say that the current density is directly proportional to the drift velocity. Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. So From this relation, just the main relation is I equal to NEVD. अब यहाँ से A इस साइड ले आए हम लोग. I by A is the current density, so J equal to NEVD, or we can say that J is directly proportional to the drift velocity because N is constant, E is constant. Okay. गुड मॉर्निंग स्टार्ट किए हैं. अब यहाँ पे बात आती है कि हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे. हाउ वी डिफाइन द करंट डेंसिटी. What is the difference between the electric current and current density? Current density. Current density. The amount of charge. The amount of charge
passing through the amount of charge, just write down the amount of charge passing through per unit area. The amount of charge passing through per unit area of conductor when it is placed perpendicular to the flow of current is called current density. The amount of charge passing through per unit area of conductor when it is placed perpendicular to the flow of current is called current density. फ्लो ऑफ चार्ज कर दो, इसको करंट से बेटर है चार्ज कर दो, फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है। सर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैसे हुआ? ये जो है कंडक्टर को इस तरह से प्लेस किया गया है, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको प्लेस किया गया है, ठीक है? यस सर। कंडक्टर को प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। ओके डायरेक्शन है। हाँ बोलिए। सर तो फ्लो ऑफ चार्जेस को सब फ्लो ऑफ करंट पर बेस पे चार्ज क्यों लिखेगा? फ्लो ऑफ करंट चार्ज तो करंट ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग चार्ज पर यूनिट टाइम ना करंट होता है। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ज को फ्लो करा रहे हैं ना परपेंडिकुलर। ओके सर। द अमाउंट ऑफ चार्ज को ना पास कर रहे हैं यहाँ पे। यस सर। ठीक है, ओके। तो अब इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है। यस सर। यस सर। तो ये कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity denoted by J, mathematically J equal to I by A, SI unit ampere per meter square, dimensional formula m naught L का पावर -2 T naught A का पावर 1। सर अगर कोई कंडक्टर सर परपेंडिकुलर नहीं होगा चार्ज के तो कंपोनेंट लेके उसका चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ चार्ज जो लिखे है ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, उसके अमाउंट ऑफ करंट कर दीजिए, द अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि I by A है ना, Q by A नहीं है, द I by A है। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू the amount of current flowing through per unit cross section area of a conductor, the amount of current flowing per unit area of conductor when the conductor is placed perpendicular to the direction of flow of charge, the amount of current flowing per unit area, per unit cross section area
of a conductor when the conductor placed perpendicular to the direction of flow of charge is called current density. That J equal to I by A. सर हाँ बोलिए. सर करंट डेंसिटी तो हमेशा फिर पॉजिटिव ही होगा. बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है. यस सर. आगे बढ़े. यस सर. सर ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि I by A है ना. I का हो गया एम्पियर, A का हो गया मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. Ohm's law. Ohm's law. It states that when physical condition remain constant, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. It states that when physical condition remain constant. फिजिकल कंडीशन मतलब समझ में आता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट. pressure. मेरी बात है. टेम्परेचर, प्रेशर. It states that when physical condition remain constant, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. सर हो गया. हो गया. अब देखो, क्या फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट हो सकता है? पॉसिबल है. मेंटेन करके रखे तो यस सर. चेंज कर सकता है ना भाई. जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उनका प्रेशर भी चेंज हो सकता है ना. यस Yes. That's why this Ohm's law is not a universal law. ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बिकॉज टाइम के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो चेंज कर जाता है. Okay, it states that when physical condition remain constant, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. That is I directly proportional to the VB minus VA. I equal to VB minus VA by R. That is VB minus VA equal to IR. Let VB minus VA equal to V. So V equal to IR, where R is the proportionality constant, where R is proportionality constant, and known as electrical resistance.
Ohm's law, it states that when physical condition remain constant, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. That is I, where is VB minus VA. I equal to VB minus VA by R. That is VB minus VA equal to IR. Let VB minus VA equal to V. So V equal to IR. Here this R is the proportionality constant and known as the electrical resistance. सर वो VB माइनस VA जो है वो आप पोटेंशियल अक्रॉस के लिए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वही ना होगा, क्या करा है? ये कंडक्टर है तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। यस ये तो पॉइंट है ना। यस सर। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। यस ये दो पॉइंट के बीच का क्लियर। कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालेंगे किसी दो पॉइंट के बीच का निकालेंगे हम लोग। यस सर। So I varies VB minus VA, I equal to VB minus VA by R, that is VB minus VA equal to IR. इसको हम लोग ये VB minus VA क्या है? पोटेंशियल difference, not potential. VB Yes, minus sir. VA is the potential difference. Yes, sir. Suppose that let VB minus VA equal to V, so V equal to IR. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, टेक्निकल क्या करते हैं, स्टेटमेंट तो सही लिख दिया, when the physical condition remain constant then the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference. और जब मैथमेटिकल लिखते हैं तो क्या करते हैं, VB minus VA directly proportional to IA. If we plot a graph between V and I, यहाँ तक नोट कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब if we plot a graph between V and I, if we plot a graph between V and I, then the nature of the graph is straight line. है ना? Yes, sir. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ओम्स लॉ का, ये ऐसा ग्राफ सर स्ट्रेट कैसे होगा? सर रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर से इंक्रीज ना करेगा तो स्ट्रेट कैसे हो गया सर? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा तो आर का वैल्यू चेंज कर जाएगा। कोई रिलेशन है आर और टेम्परेचर के बीच में क्या? Sir, R is Directly proportional. टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस के बीच का कोई रिलेशन है क्या? So वो रिलेशन resistance is है, आपने पढ़ा होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। जूल्स लॉ जो बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ हीट जब देंगे, अब जैसे देखो हीट कैसे, हीट से क्या रिलेशन है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब ऑपरेटर्स कनेक्ट करते हैं हम लोग सोर्स से, तो करंट उसे हीट मिल रहा है ना। जब हीट बढ़ेगा तो आर का वैल्यू क्या होगा? चेंज कर जाएगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, मैं नेट चला गया था। ओके, मैं ये कह रहा था Ohm's law, if we plot a graph between V and I, then the nature of graph will be straight line because both are the directly proportional. Straight line, but practically ऐसा होता नहीं है। यस सर। प्रैक्टिकली में ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेम्परेचर के जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्यों?
उसके रिलेशन हमारे पास h इक्वल टू आई स्क्वायर टी है, इस रिलेशन से चेंज कर जाएगा। यही कारण, दीज आर द रीजन ना दैट ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यही कारण है कि ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। टाइम के रेस्पेक्ट में उसका ग्राफ जो है वो चेंज कर जाता है। ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा आ जाता है। अनदर एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। अनदर एग्जांपल क्या है, वो सेमीकंडक्टर है। अगर उसका भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो नेचर ऑफ ग्राफ जो उसका एक आता है, एक ऐसा आता है, एक ऐसा आता है। इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, इसको हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं। यहाँ भी हम V और I का ग्राफ ले रहे हैं। ये V है, ये और ये I है, ये V है। तो V और I का जब हम ग्राफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज पर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कर रहा है भाई, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इन प्रैक्टिकल इट डजंट हैपन सो। Yes, sir. In case of semiconductor, the nature of graph is like this way. This graph is called forward biasing graph. Forward biasing क्या है, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर में और डिटेल करेंगे। This graph shows the reverse biasing. यहाँ पे V और I है, यहाँ पे V और I है। जब ये स्ट्रेट है तो इसको भी स्ट्रेट होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। This is the reason that Ohm's law is not a universal law. Ohm's law जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। टाइम के साथ उसका वैल्यू जो है वो चेंज कर जाता है। ठीक है? यस सर। दिस इज अ फेल्योर ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ फेल कर गया था। लिमिटेशन सर। हाँ, लिमिटेशन, दैट आर सम लिमिटेशन ना, या फेल्योर जो भी बोले हम लोग। यस सर। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके। अब सपोज दैट इसी ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। We have two conductors. We have two conductors, OA and OB. ठीक है? Out of these two, which one has the higher resistance and why? सर OA। 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 क्यों भाई? सर इसका एंगल ज्यादा कवर कर रहा है, tan थीटा का वैल्यू। Higher is the slope, higher will be value, resistance नहीं। इसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। क्या हाँ या ना? यस सर। क्योंकि यहाँ पे V by I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब V by I इक्वल टू आ रहा है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर यही बात हम बोले, अगर ये ग्राफ हम यहाँ I ले लेते हैं और यहाँ V ले लेते हैं, तो अब बताओ कौन सा, किसका जेमेट्री ज्यादा होगा? OB का, OB का सर। क्यों भाई? क्यों 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 क्यों? सर क्योंकि वो इनवर्सली हो जाएगा। ये बहुत अच्छी, गुड, वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पे I by V इक्वल टू 1 by R ना है। Yes, sir. I इस इक्वेशन में I by V इक्वल टू 1 by R Yes, sir. है ना? तो दैट मींस जिसका स्लोप कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। Yes, sir. ये छोटी छोटी चीज समझने की चीज है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे प्राय गलती करते हैं, जब आप प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल करना होता है और इसका ग्राफ भी बनाने होते हैं प्रैक्टिकल कॉपी में, तो हमें प्लॉट करना है VI का ग्राफ। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ही आपका VI का ग्राफ निकालना है। अच्छा, I वर्सेस V का ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा, V वर्सेस I ग्राफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर कोई I वर्सेस V ग्राफ निकाल दिया तो क्या गलती कर बैठा वो, बता सकते हैं कोई भी? V वर्सेस I निकालना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट निकल जाएगा। नहीं, ये तो सही चाहिए, तो अलग बात है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर किसी ने I वर्सेस V का ग्राफ खींच दिया तो उसने क्या ऐसी गलती कर बैठा? सर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा।
और कुछ सर बताइए। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली सर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जिसके कारण उसका वैल्यू गलत हो गया। सॉरी, आप क्या बोलना चाह रही हो? सर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ देखो, सही बोली तुम भी। यहाँ पे देखिए, हम V वर्सेस I में जो हम ग्राफ प्लॉट करना होता है हमें, वो रेजिस्टेंस का प्लॉट करना होता है ना। ये जो हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, इससे R का वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग। यस सर। यस सर। लेकिन जब हम I वर्सेस V करते हैं तो 1/R आ रहा है। 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। तो हम ग्राफ जो प्लॉट कर दिया जल्दी जल्दी में, वो तो कंडक्टेंस का निकाल दिया। यस सर। तो टेक्निकली गलत हो गया ना। यस सर। ये गलती आप लोग ना करेंगे। सर 1/R क्या बताए थे? 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके सर। लैपटॉप चार्ज में लगा दूं, डिस्चार्ज हो गया है। हाँ यस। ओम्स लॉ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। Now electrical resistance. नाम से क्लियर है ना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्या करता होगा? इलेक्ट्रिकल करेगा, रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो करेगा फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बस कुछ सिमिलरिटी है कुछ टर्म में। व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल मैकेनिज्म, तो वहां भी एक अपोजिशन टर्म है। क्या है उसका नाम? जब हम लोग जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहां भी एक अपोजिशन का टर्म है। फ्रिक्शन। यस, वेरी नाइस। फ्रिक्शन सर, फ्रिक्शन। Friction. It opposes the flow of motion. यस Yes. Yes. मोशन ऑफ द बॉडी का यही चीज है। जब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी एक अपोजिशन टर्म है। व्हाट आर द नेम ऑफ दैट क्वांटिटी? जब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी एक अपोजिशन टर्म है जो अपोज करता है। आप मुझको उसका नाम बताओ। सर विस्कोसिटी। वेरी नाइस, विस्कोसिटी। सर सही है। बिल्कुल 100% सही है। क्यों आपको लगता है कि सही नहीं है? सर मेरे को विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ही लग रहा था, लेकिन सर दोनों अपोज ही कर। सरफेस टेंशन तो अलग चीज ना है, वो मिनिमाइज करता है ना। which tends to occupy the minimum possible surface area. यस सर। ठीक है। और ये जो विस्कोसिटी थी, ये अपोज करता है ना, किसको अपोज करता है? सर वाटर के फ्लो को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। वो विस्कोसिटी क्या करता है कि वो डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर को अपोज करता है। ठीक है। यस सर। So when we have discussed about the general mechanism, the opposition term is the friction, which oppose the motion of the body.
whenever we have discussed about the hydrodynamics, the opposition term is the viscosity, which opposes flow of water. When we have discussed about the current electricity, the term is the resistance. That means it opposes the flow of charge in है. Yes, sir. Resistance का काम क्या है? It opposes the flow. The oppositions offered by to the flow of charge is called electrical resistance. यानी रेजिस्टेंस का काम क्या है? इसको चार्ज को फ्लो करने में अपोज करना. लिख लीजिए डिफिनेशन. Yes, sir. The oppositions offered to the flow of electric charge. The oppositions offered to the flow of electric charge. The oppositions offered to the flow of electric charge in a conductor. The oppositions offered to the flow of electric charge in a conductor is called electrical resistance. ठीक है? The opposition offered to the flow of electric charge in a conductor is called electrical resistance. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. It is denoted by R, and mathematically R equal to V by I. R equal to V by I. यानी that means इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. It is a ratio of potential difference to the flow of current. Yes, sir. Yes, sir. It's SI unit of R ohm. This is a Sir, symbol. वोल्ट पर एम्पियर भी हो जाएगा. वोल्ट पर एम्पियर that is Yes, equal to ohm. Yes, sir. वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम. डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखा बच्चा. डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए. डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए. Sir, ML square T square A minus Sir. 1. Sir, ML square T minus 3 I minus 2. देखो V का क्या होता है? V इक्वल टू W बाई Q होता है ना भाई. Yes, होता sir. है. W by Q naught. ML square T minus 2 by 80. Yes, sir. That means ये हो गया M1 L2 T minus 3 A minus 1. Yes, sir. V by I यानी M1 L2 T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस 1 by A यानी M1 L2 T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस 2. Sir, जी बोलिए. सर कैपेसिटेंस में जैसे सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला था सर, तो उसका अपोजिट यहाँ पे रेजिस्टेंस में होता है. हाँ बिल्कुल, उसका भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके सर.
उसका जो हम लोग सीरीज में निकाले थे, यहाँ इसका पैरेलल में आता है। यस सर। इसका हो गया। यस सर। यस सर हो गया। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यस सर। इसी में अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे इसको हम लोग। रियोस्टेट। रियोस्टेट। रियोस्टेट का सर क्या काम वेरिएबल होता है? रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट इसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ये सिंबल होता है रियोस्टेट का। ऐसा दिया रहेगा तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर डिफरेंस। दोनों का में ये रियोस्टेट जो है वेरिएबल करंट को वेरी करता है। दोनों का में सिंबल अलग अलग होता है। सिंबल जो है दोनों फंक्शन एक ही है लेकिन सिंबल अलग अलग है। ओके, फैक्टर्स affecting the resistance. Factors affecting the resistance. The resistance of a conductor